Welcome again, students. In the previous video, I told you about monohybrid cross or inheritance of one gene. There, you studied that how the characters or the traits are passed from one generation to the next generation, and they passed in which kind of pattern. Okay, so I'm continuing the same topic, uh, and I'm going to tell you that on the basis of that particular monohybrid cross, Mendel proposed basically generally two laws or two principles. What are these two laws? I'm going to tell you, which are commonly called as principles or laws of inheritance. Now, what are these? Law of dominance and law of segregation. I think you studied about them in the previous class also, 10th class. So I'm going to tell you in detail what happened there. Now, if you will observe what happened in the monohybrid cross when two parents having two opposite traits were crossed together. In F1 progeny, only one character expresses itself, and the character which is going to express it is called dominant character, or the trait which is unable to express itself, it is called recessive trait. On the basis of this result, Mendel proposed the first law. केवल F1 प्रोजेनी तक जाते जाते उसने एक लॉ प्रपोज कर दिया, तो उसने देखा कि केवल एक ही ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और एक ट्रेट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ इट ही प्रपोज द फर्स्ट लॉ. व्हाट सेज द फर्स्ट लॉ? According to Mendel's law of dominance, only one trait is able to express itself in F1 progeny, and the trait which is able to express itself is dominant trait, and the rest one is recessive trait. Now, on the basis of his conclusion, there are 3 points which were mentioned by Gregor John Mendel. And what are these? First point, characters are controlled by a discrete unit called factors. ठीक है, we know that there is something, Mendel ने कहा था, there is something which is helping in the passing of traits or characters, and these are called as, there is a, Mendel said that there is a discrete unit. And what is this discrete unit? Factors. And factors are always in pairs, means किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? टू. तो टू जीन्स मीन्स फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स आर ऑलवेज इन पेयर. थर्ड, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, यही जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है. इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर. कहने का मतलब ये है कि इफ द फैक्टर्स, इफ द जीन्स आर नॉट सिमिलर, दे आर डिसिमिलर, तो out of these two dissimilar genes, only one gene is expressing itself. Now I am recalling in your mind, capital T and small t. These are two dissimilar genes, and out of these two genes, only one gene, capital T type of gene, which is also called as allele, ठीक है, is expressing itself. This is called dominant allele. ठीक है, and or we can say that it's a dominant gene or dominant factor, while the other one is called as recessive factor. Is it clear? So the law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in monohybrid cross in the F1, and the expression of both in F2 is also explained in the proportion of 3:1 obtained at the F2 generation. So I am not going to the F2 generation because I will explain another law with the help of the F2 generation. How? I am going to tell you that. And the second law is called law of segregation. Now, what is law of segregation? Before explaining it, I just want to recall one more thing. And after my recalling, you will be self able to answer or to explain the law of segregation. Now, what happened? In F1 generation, Mendel got all the tall plants, and he self pollinated these tall plants. तो एज ए रिजल्ट उसे क्या मिला? F2 जनरेशन में आपने देखा कि टोटल उसे 4 अगर प्लांट मिलते हैं, तो 4 में से 3 तो टॉल मिलते हैं, यानी एक क्या मिलता है? डॉर्फ मिलता है. तो कहने का मतलब कि डॉर्फनेस का जो करेक्टर वो आपके उनके पेरेंट्स में मौजूद ही नहीं था, क्योंकि पेरेंट यहाँ पे कौन है? F1 जनरेशन के प्लांट, वो पेरेंट तो है ना अभी. एक तो पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट हो गई आपकी, एक फीलियल जनरेशन हो गई, एक F2 जनरेशन हो गई. नहीं, F2 के पेरेंट कौन है? F1 जनरेशन वाले प्लांट दोनों टॉल थे ना. अब उनकी ऑफस्प्रिंग कैसी मिलती है? डॉर्फ मिलती है. तो कहने का मतलब है कि यार जो करेक्टर प्रेजेंट ही नहीं था, वो करेक्टर कहाँ से आ गया? मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन एलील्स. कहने का मतलब यही है ना, एलील्स जो थे वो पेरेंट्स से F1 जनरेशन के पास गए,
उन्होंने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया एंड द कॉम्बिनेशन वाज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी कॉम्बिनेशन था तो स्मॉल टी वाज अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। बट जब दोबारा से गैमेट बने F1 प्रोजेनी के बाद, F1 प्रोजेनी में जब सेल्फिंग हुई तो दोबारा से जब गैमेट बने, तो दोबारा जब गैमेट बने थे एट द मीन टाइम कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। और स्मॉल टी अगर दोबारा एक साथ लकीली साथ में आते हैं तो वो खुद से अपने कैरेक्टर को दोबारा से एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि स्मॉल टी में कभी भी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई थी, वो कैपिटल टी के साथ था तब भी उसने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया हुआ था, बट वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, सीधी सी बात ये। ठीक है, इज इट क्लियर? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स सेग्रीगेट रैंडमली, देयर विल बी नो ब्लेंडिंग ऑन द गैमेट्स while they are in union with the dominant allele. ठीक है, so I am going to explain it. Law of segregation. This law based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation. इसका यही मतलब है, इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती, यही तो रीजन था ना, जो दोनों कैरेक्टर थे वो रिकवर्ड हो गए। आपने फाइनली देखा था कि F2 जनरेशन में जो जीनोटिपिक रेशियो मिला था वो 1:1 का मिला था, यानी ट्रू प्योर लाइन ब्रीड आपको टॉल की भी मिल गई थी, ट्रू प्योर लाइन ब्रीड आपको ड्वार्फ की भी मिल गई थी। इज इट क्लियर? और एक आपको हाइब्रिड भी मिली थी। सो what comes from here? Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or the alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kind of gametes and each having one allele with the equal proportion. Is it clear? तो यानी कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। अगर वो रीयूनाइट होते हैं, अगर एक जैसे एलील, तो वो अपने आप के कैरेक्टर को दोबारा से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इज इट क्लियर? सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन द एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अगर आपको उस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को याद रखना है तो आप इतना याद रखिए कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन द एलील सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली और रैंडमली। ठीक है, देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ वन एलील ऑन द अनदर एलील वाइल दे आर इन अ यूनियन। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड नाउ द थर्ड थिंग which is associated with the law of dominance, and this is the exception of the Mendel's law of complete dominance. I am going to tell you that it is called incomplete dominance. Now what is incomplete dominance? When the experiments on the pea plant was repeated using other plants, it was found that sometimes the F1 had phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. Okay, now what is it? I am going to tell you that मेंडल ने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस देते समय उन्होंने क्या देखा था कि जब दो अपोजिट ट्रेड्स वाले प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है तो F1 प्रोजेनी में केवल एक ही कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है, दूसरा कंप्लीटली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, ये एक्सेप्शन था जहाँ पे मेंडल का रिजल्ट नहीं आया कुछ प्लांट्स में, जैसे स्नैप ड्रैगन फ्लावर जिसका कि साइंटिफिक नेम होता है मिराबिलिस जलापा। ठीक है, स्नैप या फोरोनून प्लांट भी कहते हैं इसको, 3 अलग अलग नेम है बेटा, कभी भी किसी भी नाम से आता है। स्नैप ड्रैगन कह दो, डॉग फ्लावर कह दो, या मिराबिलेस जलापा बोल दो, या फोरोनून भी बोलते हैं कभी कभी इसे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक रेड प्लांट लिया और एक वाइट प्लांट लिया गया साइंटिस्ट ने, और जब उन्होंने इनका क्रॉस कराया तो एज अ रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, रेड कलर वाइट के ऊपर डोमिनेट करता तो F1 जनरेशन में सारे के सारे रेड मिलने चाहिए थे ना, बट ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया कि रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है और वाइट कलर जो है वो आपका क्या है, रेसेसिव है। तो यहाँ पर हम आप देख भी रहे हैं, तो पी जनरेशन पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल आर जो दिया हुआ है रेड कलर को दिया हुआ है, स्मॉल आर जो दिया हुआ है वाइट कलर को दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा है ना। अब देखिए इनके जो गैमेट बनेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, जो फर्स्ट F1 प्रोजेनी मिलेगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर, कायदे से क्या होना चाहिए था, सारे रेड होने चाहिए थे ना ये, बट सरप्राइजिंगली ये तो रेड हुए ही नहीं। ये कैसे हो गए आपके F1 प्रोजेनी में, कैसे हो गए सारे के सारे पिंक? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना तो रेड अपने आप को डोमिनेट कर पाया, ना ही वाइट, और कलर कैसा आ गया, पिंक आ गया। इज इट क्लियर? समझ आ गया ना। नाउ अब इन्हीं का दोबारा क्रॉस, अब देखो F1 प्रोजेनी में कैपिटल आर स्मॉल आर वाले जो मिले प्लांट, उनका आपस में सेल्फिंग कराई गई, तो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला, 1:1 रिजल्ट। देखो 1 आपको कंप्लीट रेड मिल रहा है और 2 आपको क्या मिल रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, और 1 आपको क्या मिल रहा है, वाइट मिल रहा है। कैसे मिला देख लीजिए बेटा, ये आपको पेनेट स्क्वायर से शो किया हुआ है।
Now what are the gametes? Capital R, small r. In the second case capital R, small r. ठीक है, मेल में भी यही है गेमेट, सेम फीमेल में भी सेम है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। फर्स्ट ब्लॉक में आप देख रहे हैं, इसमें देखिए स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था इज्जत दे देते हैं कैपिटल वाले को। अब लास्ट वाले ब्लॉक में देखिए, यहाँ पे वाइट जहाँ फ्लावर दिख रहा है आपको, स्मॉल आर तो दोनों के दोनों स्मॉल आर हो गए, तो वाइट कलर का फ्लावर हो गया। देन हेयर लास्ट ब्लॉक कॉर्नर पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो पिंक कलर का फ्लावर। तो देखिए यहाँ जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:1, और फिनोटिपिक भी क्या मिला, 1:1। तो ठीक है, तो यहाँ पर डिफर करता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके साथ, कंप्लीट डोमिनेंस के साथ। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, अगर आता है व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आप लिखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स डोमिनेंस, complete dominance or law of dominance, and it occurred in the snapdragon flower. Actually, according to Mendel's law of dominance, one character should be dominant in the F1 generation and it should be completely able to express itself, but it was not, it occurred in case of the snapdragon flower. ठीक है, instead of being once complete dominance, ठीक है, incompletely both of the characters showed themselves as a result of the pink flower. And what happened with the F2 generation, you can tell you that in F2 generation, when two hybrid plants was crossed in the F2 generation, one plant two plants having parental trait were occurred and two hybrids were occurred. ठीक है, and the genotypic ratio as well as the phenotypic ratio was 1:1. Now एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रोल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। आखिर कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ रेसेसिव क्यों होते हैं, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। बिकॉज एक्चुअली मैं आपको इसको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर समझाना चाहूँगा कि डोमिनेंस क्यों आती है। ठीक है, सपोज कोई दो जीन है और दो जीन कोई एंजाइम बनाते हैं, और जो एंजाइम वो बना रहे हैं, एंजाइम फुल्ली अगर इफ़िशियंट है तो वो जीन क्या होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है, अगर वो जीन जो एंजाइम बना रहे हैं वो जीन नॉन फंक्शनल है, तब वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। अगर कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा है तब भी वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, देयर आर अ सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, उस सेट ऑफ जीन्स में दो, देर इज अ फॉर एक सिंगल करेक्टर देर इज अ सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, वो दो जीन जो हैं वो एंजाइम बनाते हैं, और वो एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है, और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई करेक्टर किसी प्लांट में आता है। सपोज़ वो जीन जो एंजाइम बना रहे हैं वो नॉर्मल है या लेस एफिशिएंट एंजाइम है, तब भी क्या होगा, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो यानी हम कहेंगे वो डोमिनेंट जीन है। अगर वो जीन बना रहा है बट नॉन फंक्शनल है तो वो रेसेसिव जीन हो जाएगा। ठीक है, और वो कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा तब भी वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव एंजाइम होगा। तो यानी जो एंजाइम वो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करता है कि क्या कोई जीन डोमिनेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ओके, सो I am completing my topic because I want to discuss codominance along with it. Okay, so I am completing incomplete dominance, and if I will leave it today, it will be quite confusing. ठीक है, now what is the difference between incomplete dominance and codominance? तो incomplete dominance में हमने देखा दोनों में से कोई भी जीन completely अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वहीं इसी के अपोजिट कोडोमिनेंस में क्या होता है, इन कोडोमिनेंस बोथ ऑफ द जीन इन एफ वन प्रोजेनी में दो अलग अलग जीन जो आपस में मौजूद हैं वो दोनों अपने आप को क्या कहते हैं, कंप्लीटली एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा या ना ही आपको कंप्लीट डोमिनेंस दिखा, तो यहाँ पे आपको कोडोमिनेंस दिखा, यानी कि दोनों के दोनों जीन अपने आप को फ्रीक्वेंटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स इन हेयर आई विल डिस्कस in the next video because it will take too much time.